ओके, दादा हम प्रार्थना से चालू करें? यस। यस, ओके। Preeta, can you please lead us in the opening? Yes, Yeah, thank you. Lord, thank you, Lord God. Thank you for this day, Lord God. Thank you for this time, Lord God. We surrender, Lord God, this day, this time into your holy hands, of Father, Lord God. You cover, Lord God, all of us by your most holy and precious blood, of Father. Yes, Lord, joined, O Father, Lord God, and yet to join, O Father, Lord God. You cover them by your blood, O Father, Lord Jesus. Yes, Lord, that you help us, O Lord God, to understand your word, O Father, Lord God. Yes, O Lord, you speak to each one of us, O Lord God, today. Yes, O Lord. Yes, as we have all gathered here, Lord God, to learn, O Lord God. Learn your word, O Father, Lord God. You guide us and you teach us, O Lord God. Yes, Lord, we surrender, Lord God, this time, Lord God, and every equipment that will be used, O Father, Lord God. Lord, you cover the internet, Lord God, the electricity, Lord God, and everything that will be used, O Lord God. Lord, you cover it by your blood, O Father, Lord God. And we pray, O Father, Lord God, for your we surrender, Lord God, Shikhar Dadu also into your holy hands, O Father, Lord God. You cover him by your blood, O Father, Lord God, and you use him, O Lord God, and you speak through him today, O Father, Lord God. Everything that you have taught him, Lord God, that he is going to teach us today, O Father, Lord God. Yes, Lord, that we would receive it today, O Father, Lord God. Yes, Lord, we pray for your perfect will to be done in this place, O Father, Lord God. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. अमीन। सो आज के दिन हम लोग अपने अध्ययन में एंटर करेंगे और हिंदी में पढ़ने में मुस्कान फ्रॉम भिलाई। मुस्कान हो? जी अंकल। हम्म। हिंदी में तुम पढ़ोगे जेनिता फ्रॉम मुंबई। इंग्लिश में इंग्लिश में तुम पढ़ोगे। यस। जेनिता देयर फ्रेंड जी। यस यस आई एम हियर। ओके। तो दोनों पढ़ो। दूसरा तिमुथियुस 2:1 से 5। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. तो प्रभु इन वचनों में इसके द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से मैं अपने आप को, अपने सभी जवान बच्चों को आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सबके जीवन के लिए आज जो आपका वचन का भाग है, उसे आप प्रकट करें, ताकि हम आपकी इच्छा को, मनसा को समझ सकें ठीक ठीक, और उसके अनुसार आगे हम अपने जीवन में उन्नत होते हुए बहुतों के लिए आशीष के कारण बन सकें। प्रभु जी, सारे बच्चों को आपके चरणों में सौंपता हूँ, अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। ये जो समय हमें मिला, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन ये जो माध्यम है प्रभु, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि इसको आप बनाए रखें, ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी समस्या के हम आपकी इच्छा को ठीक ठीक जान सकें, समझ सकें।
आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दो शब्द है जिस पे आज हम लोग अपना कंसंट्रेशन बनाएंगे। मसीह यीशु, मैंने पिछली बार जब शुरू किए थे तभी बोला था कि मसीह यीशु के विषय में ध्यान करेंगे, और संसार, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से कि संसार के कामों में नहीं फंसने का मतलब जॉब नहीं करना, काम नहीं करना, कोई किसी काम में हाथ नहीं लगाना, ऐसा बोलना चाहता है क्या है? क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए काम तो होना चाहिए, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए। तो ये संसार का मतलब, ये संसार के काम बोलने से जॉब के विषय में नहीं बोल रहा, क्या बोलना चाहता है उसके विषय में हम ध्यान करेंगे। पर उससे पहले मसीह यीशु शब्द पर ध्यान करेंगे। ये मसीह यीशु, ये शब्दों का जो प्लेसिंग है बाइबल में, ये इसमें एक कोड है। यदि आप ठीक से बाइबल अध्ययन करना चाहते हो तो ध्यान करना, कभी यीशु मसीह बोलता है, कभी मसीह यीशु बोलता है, कभी प्रभु यीशु मसीह, इनका इसमें पीछे कोड है, इसके पीछे उसका मतलब होता है। जब भी कोई शब्द आगे पीछे हो रहा है तो उसके पीछे वो कुछ बताना चाहता है हमको। तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, इसको समझने का आज पहले प्रयास करेंगे। ये जो मसीह यीशु है, क्राइस्ट जीसस, वो मसीह शब्द पहले है। तो मसाया वर्ड से मसीह हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। मसाया जो है हिब्रू वर्ड है, और उसी का क्रिस्तुस बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है, जिसको इंग्लिश में क्राइस्ट बोला। मसीह, मसीह शब्द के लिए हिब्रू में मसाया, ग्रीक में क्रिस्टुस, इंग्लिश में क्राइस्ट, और हिंदी में मसीह। और ये तीनों चारों शब्दों का मतलब होता है एनॉइंटेड। एनॉइंटेड फॉर व्हाट? परमेश्वर ने विशेष अभिषेक किया यीशु को। यीशु का अभिषेक किया गया किस लिए? टू डाई फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्राण देने के लिए। तो मसीह शब्द पूरी बाइबल में केवल एक जगह आया है, उसको खोजना ढूंढना आप लोग। 9 अध्याय, उसके 25, 26, 27, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 25, 26, 27 को पढ़ना। उधर ही केवल एक जगह अभिषेक जो शब्द आया है, अनॉइंटेड, उसके लिए हिब्रू में वर्ड एक्चुअल में, एक्चुअल टंग में वो मसाया है। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड। सो इसको यहाँ ध्यान रखना, मसीह यीशु के अनुग्रह से का मतलब परमेश्वर का अभिषेक जो तुमको मिला, उस वो दैट इज अ ग्रेस। और उसके बाद यीशु, यीशु को आरामिक में बोलते हैं ईशो। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों को भेजूंगा, नोट करके रखना। हिब्रू में उसी को यशुआ बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को जीसस बोला, जिसको हम लोग हिंदी में यीशु शब्द बोलते हैं। तो यीशु जो है अरेमिक है, और यशुआ जो है हिब्रू है, और जीसस जो है इंग्लिश वर्ड है। तीन सब का मतलब होता है सेवियर। और तब इनके बारे में कहाँ कहाँ लिखा है उसको ध्यान करेंगे। पढ़ो मत्ती 16, उसके 13 से 19 तक मसीह शब्द के विषय में कुछ बात यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इस बात को, इसमें दो पार्ट है।
एक पहली बात ये कि यीशु ने इसके प्रकटीकरण से पतरस को कुछ प्रॉमिस किया, और उसके बाद उसने कहा कि तू पतरस है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आगे की जो भी बात है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। पर अभी ये इनको शमौन पतरस को मालूम हो गया था कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब उसके बाद क्या हुआ, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार। Matthew 16:13 to 19. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Well, they replied, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets." Then he asked them, "But who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven." तो यहाँ पर जो शुरू किया उसी से ये बात प्रकट होती है कि आज भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। यीशु के बारे में नाना प्रकार के लोगों के सोच हैं। यीशु ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, एक जन ने सही आंसर किया था। तो हमारे पास भी उसका आंसर क्या है, सबके पास अलग अलग हो सकता है। कोई उसको एज हीलर जानता है, कोई उसको कोई कंफर्टर जानता है, कोई उसको डॉक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, कि एक से एक बातें वो लोग बोलते हैं। बट ही इज मसाया। मसाया का कॉन्सेप्ट क्या है आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पढ़ो। मुस्कान। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना हो। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। Matthew 16:20 to 27. Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Jesus predicts his death. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. "Heaven forbid, Lord," he said. "This will never happen to you." Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's." Then Jesus said to his disciples, "If any of you want to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? For the Son of Man will come with
with his angels in the glory of his Father, and will judge all people according to their deeds. तो ये पोर्शन बताता है कि इन सब बातों के पीछे, मसाया के पीछे परमेश्वर का डीलिंग क्या था, क्या मसाया के पीछे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इसलिए मसीह यीशु के अनुग्रह से का मतलब सबसे पहले इस बात को समझना है कि वो इसमें भी हम लोग कई बार अपने को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीही बोलते हैं, पर मसीही वही हो सकता है जो मसीह की लीक पर चलता हो। मसीह, ये इसको यीशु को मसीह नाम क्यों मिला था कि वो सताया जाए, वो मार डाला जाए, उसके विरोध में बहुत सारी बातें होने वाली थी, इसी के लिए उसको मसीह नाम दिया गया। मसीह नाम जो है उसका डेजिग्नेशन है, उसका पद नाम है, उसको ये पद दिया गया। यदि इसको पढ़ोगे प्रेरितों काम 2 अध्याय, उसके प्रेरितों काम 2 उसका 36 पढ़ो, 35 पढ़ो। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अंकल यही वाला ना? 2 का 35। हाँ, ये 35 ही था। हाँ, 36 पढ़ो। ओके। अतः अब इज़राइल का सारा घराना ये डिक्लेयर कर रहा था पतरस, इस्राएल का सारा घराना या जान ले, बोला क्या? अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये परमेश्वर ने उसको प्रभु और मसीह की उपाधि दी है, उसका नाम तो यीशु था। तो हमको भी मसीह नाम तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उसके लिए अपना क्रूस उठाने को तैयार ना हो। और इसलिए इस विषय को ध्यान रखना, मसीह यीशु के अनुग्रह से का मतलब, यीशु का मतलब जो क्रूस उठाने के लिए तैयार है, मसीह का मतलब जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बहुत दुख उठाने वाला है। और तब हमको मसीह शब्द, मसीह नाम, पद नाम परमेश्वर दे सकता है। ये यीशु को मसीह और प्रभु उसने ठहराया, इसलिए कि उसने क्रूस की यात्रा को पूरा किया था। ओके, इन बातों पर अपना ध्यान लगाना। और तब उसके बाद दूसरा शब्द है संसार। संसार के विषय में पहले यूहन्ना 2 का 15 से 17 तक क्या लिखा है, देखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, तो क्योंकि जो संसार का मतलब जॉब से, मतलब जॉब का बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। संसार का मतलब यहाँ पर अर्थात उसको डिफाइन किया, पढ़ो, जो कुछ संसार में है, अर्थात अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 3 चीजें हैं संसार बोलने से। इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, पढ़ो। For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. ये जो डिजायर शब्द है ना, उसके लिए और एक शब्द यूज होता है, लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट बोलते हैं, अभिलाषा। अभिलाषा, 2 शब्द है, इसको नोट करो, आवश्यकता और अभिलाषा। आवश्यकताएं सबकी होती हैं, आंखों की भी आवश्यकता होती है, शरीर की भी आवश्यकता होती है, जीवन के लिए जीविका की भी आवश्यकता होती है। पर अभिलाषा किसको बोलते हैं? आवश्यकता से अधिक की चाह रखना। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 5 जोड़े चप्पल हैं,
अब उसको पैसे मिला तो उसको फिर चप्पल ही दिखता है कि और चार लेके आना है। मतलब आवश्यकता से अधिक यदि कोई चीज है हमारे पास तो वो उसी को अभिलाषा बोलते हैं। और अभिलाषा को परमेश्वर ने संसार बोला। और संसार जो है इसकी एक बार फिर से बोलो इंग्लिश में क्या लिखा? फॉर ऑल दैट। For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and pride of life, is not from the जो Father. नेचुरल तुम्हारी आवश्यकता है वो तो चाहिए तुमको, पर उससे अधिक की चाह करना या जो नेचुरल तुम्हारी आवश्यकता के बाहर की चीज है। बीते दिनों में मैंने जवानों के विषय में कुछ बताया, शमशन के विषय में, दाऊद के विषय में। इन लोग शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गए। एनॉइंटेड थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा था, पर वो शरीर की अभिलाषाओं में फंस के वो अपने जीवन से हार गए। और तब उन्होंने अपना जगह, शमशन तो बहुत वो उसका बुरा हुआ। शाऊल को भी देखना, दाऊद को भी। न्यायियों की पुस्तक में शमशन का पूरा हिस्ट्री है। ही वॉज अ यंग मैन। और वहीं पर यूसुफ के बारे में पिछली बार बताया था मैं कि वो जब शारीरिक उसके सामने परीक्षा का घड़ी आया तो वो भाग गया, उसके सामने सामना नहीं किया और इसलिए वो बच गया। सो अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं से, डिजायर ऑफ फ्लेश, बहुत डेंजरस होता है। ये हवा जो है आंखों की अभिलाषा में फंस गई। वो दूर से देख के उसको फल बहुत अच्छा खाने में सब कुछ लग रहा था और तब उसने जाके तोड़ के खा लिया। तो ये तीन चीजें हैं संसार। तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता का मतलब ये डिजायर से अपने आप को बचाए रखने की आवश्यकता है। खासकर एक एक जो आर्मर है उसको पढ़ो। Do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and the pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world, and the world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Youth flee. पढ़ो। जवा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनसे उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो शैतान बोलने से वो फिजिकली एज पर्सन तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो डिजायर्स को सामने रखता है। ये हवा को उसने दूर से फल दिखाया था, उसको देख के वो फंस गई। तो ये जो जो डिजायर्स है जीवन में, जितने जो अभिलाषाएं हैं, उनके माध्यम से शैतान हमारे जीवनों में काम करता है। तो इनसे बची रहने की आवश्यकता है। उससे जवानी की अभिलाषाओं से जो आवश्यकताएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो हमारे आवश्यकता से बाहर की चीजें, उनसे दूरी रहो, भागो बोलता है। और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं जो लोग, उनके साथ धर्म, विश्वास, ये शब्दों को भी समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। ये धर्म की परिभाषा क्या है, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप, ये क्या बोलना चाहता है, इन सब बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए, इसको ठीक से समझना है। ये अभिलाषाओं को शैतान से बचने के लिए तो उसके एक पद से पढ़ोगे तो सही समझ में आएगा। पढ़ो। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुजित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। James 4 1 to 8. पढ़ो। What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you do not have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Do you think the scriptures have no meaning? They say that God is passionate, that the Spirit He has placed within us should be faithful to Him, and He gives grace generously. As the scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourself before God. Resist the devil and he will flee from you. Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. तो वेन शैतान शब्द आता है तो इसको याद रखना है कि ये डिजायर्स के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है कि ये डिजायर्स का सामना करो, उसके उससे भागो, उससे दूर रहो, अपने आप को ये जो लस्ट है, अभिलाषा है, उससे बचाने का प्रयास करो। तो एक बार फिर से एक बार फिर पढ़ लो। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, तो मुकुट नहीं पाता। ये My dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them, and athletes cannot win the prize unless they follow the rules. ये इंग्लिश में ज्यादा इजी समझ में आएगा, इसको ध्यान करो। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, इसको इंग्लिश में लिखा टाइड अप इन द अफेयर्स ऑफ सिविलियन लाइफ। जो सिविलियन लाइफ जो है हमारा, इस संसार में जीने का जो तरीका है उससे बचाने, अपने आप को बचाओ बोलता है। संसार के कामों में नहीं फंसाता बोलने से
सिविलियन लाइफ में जो बातें हमारे लिए जितना जरूरत है उतने ही को काम में लाने का, उसको जरूरत से ज्यादा यदि यूज करोगे, अभिलाषा शब्द इसलिए आता है, तो डिजायर से, अभिलाषा से अपने आप को बचाने का है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, पर आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से बाहर निकल के किसी चीज की चाह नहीं रखना चाहिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे इन विषयों में। खासकर जवानों की बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। जवानों में शारीरिक अभिलाषाएं भी होती हैं, और आंखों की अभिलाषा भी होती है, और तब बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो प्रभु आज के दिन इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। तो विल गो इन प्रेयर। यू कैन आस्क एनीवन टू फॉर प्रेयर। फैन जी। जी राहुल। ओके राहुल, क्या आप प्रार्थना करोगे? Yes, Raul, pray. यस दादा। हे मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु कि आज का हमें दिया प्रभु, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता, हम यूथ को, आपके दास को हमारे बीच में रखा प्रभु। उस दास ने जो कुछ हमें बताया प्रभु, जो कुछ आपने उनके अंदर बोया प्रभु, जिन्होंने हमारे अंदर हृदय में प्रभु आपके वचन को डाला प्रभु, उन्हें आशीर्वित करे प्रभु। उनके हर एक अड्डियों को, उनके हर एक मांस को, उनके हर एक हृदय को, उनके हर एक बुद्धि, उनकी समझ को प्रभु मैं आपके चरणों के तरफ रखा प्रभु। सहायता करे पिता कि वो और यूथों को अच्छी तरह से समझा पाए प्रभु, कि हम यूथ आपके जब हमारी जवानी को व्यर्थ जाने ना दे प्रभु। हम हमारी जवानी को आपके चरणों की तरफ रखे, ताकि हम हर एक बातों में, हर एक चीजों में आपकी महिमा करने के योग्य रहे प्रभु। सहायता करें मेरे खुदा कि हम आपकी इच्छा, आपकी योजना में, आपकी इच्छा, आपकी योजना जान सके, ताकि हम हमारी जवानी को व्यर्थ जाने ना दे, बल्कि हमारी जवानी को आपके लिए जीवित और प्रभु सहायता करे मेरे प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगता हूं मेरे को। जितने भी योद्ध आज जुड़े प्रभु, उनके ऊपर आपका अनुग्रह है मेरे खुदा, कि जो कुछ हमने सीखा प्रभु, वो हमारे हृदय में रखिए, ताकि हम उसको कभी ना भूले। और आपकी दया मांगते हैं कि उन हर एक बातों को हम करने में योग्य रहे। जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने विश्वास किया प्रभु, उन हर एक बातों को आपके चरणों की तरफ रखिए। हमारी सहायता करे प्रभु, हमारी सहायता करे हे पिता। ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो इससे पहले कि हम आज विदा हों, मैं एक बार एक एडवाइस करना चाहता हूँ सबको। आज मैंने नोटिस किया, मुस्कान का और जेनिता का और राहुल तीनों का डाटा लॉस हुआ है। मतलब ये ऑडियो क्लियर नहीं होता जब हमारे डिवाइस में डाटा कम हो। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आज के दिन, चूंकि शाम का हमारा अध्ययन होता है, दिन में वीडियो कम देखो, वीडियो को कम यूज करो, तो उसमें डाटा तुम्हारा बचा रहेगा, तुम्हारा ऑडियो वीडियो एकदम सही रहेगा। सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कॉमन वे पे। आज के दिन यदि तुम्हारा डाटा सही रहेगा तो तुम्हारा ऑडियो और वीडियो कभी मिस नहीं होगा। सो ये कई बार टेक्निकली हमको पता नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया, इसको भी ध्यान रखो सब लोग। आज के दिन ज़्यादा गाने मत सुनो या और कोई चीज़ वीडियो में यूट्यूब में मत जाओ, ताकि तुम्हारा डाटा बचा रहे और तुम अच्छे से सब चीज़ों को समझ सको। ठीक है। तो ऑडियो वीडियो बराबर रखने के लिए जरूरी है कि हमारे डिवाइसेस में, मोबाइल हो या लैपटॉप, उसमें डाटा बराबर रहना चाहिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे। फिर अगले संडे 7 बजे मिलेंगे।